لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدين بدعا غريبا وسيعود كما بدع فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون من أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک جگہ پر دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش فرمائی ہے. مشکات شریف باب الاعتصام صفحہ نمبر 30 پر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شک دین کی ابتدا انتہائی قسم پرسی، بے کسی اور مسافرانہ بیگانگی کی حالت میں ہوئی ہے اور بہت ہی جلد وہ حالت پھر واپس ہوگی. ان لوگوں کے لیے، ان بیگانہ اور اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جنہوں نے میرے بعد میرے طریقے میں فساد پیدا کرنے والوں کی اصلاح کرتے ہیں. عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے دین کی دعوت دی، دین کا پیغام سنایا، تو اس وقت لوگوں کے لیے یہ پیغام بہت نیا تھا، کیونکہ لوگ بہت سے خداؤں کو، بہت سے معبودوں کو اپنی تمام ضرورتوں کا کارساز سمجھ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، ایک ہی خالق نے ساری کائنات کو سجایا اور رچایا ہے، ایک ہی خالق نے دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، یہ چیز لوگوں کے سامنے پیش کی. تمام لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے پیغمبر اور ان کا دین کیسا ہے کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک ہی معبود قرار دے دیا. اس لیے کہ انہوں نے بہت سے معبود بنا رکھے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کا کاروبار جو چلتا ہے اس کے لیے ایک خدا کافی نہیں ہے، اس کے لیے بہت سے خداؤں کی ضرورت ہے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک ہی خدا سے سب کچھ ہوتا ہے اور تمام کے تمام معبودان باطلہ کی نفی فرما دی. عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعوت پر مخالفت ہوئی،
آپ کو طرح طرح سے ستایا گیا، پریشان کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام کے تمام صحابہ کرام اپنے اس مشن کو لے کر چلتے رہے، تکلیفوں کو اور تمام مصائب کو برداشت کرتے رہے، مگر اپنے اس کارواں کو روکا نہیں بلکہ جو ہے آگے بڑھتے رہے، اور صحابہ کرام نے تمام تکلیفوں کے باوجود اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کی۔ اس وقت یہ ایسا مشن تھا، ایسی دعوت تھی جو لوگوں کے لیے بالکل عجیب تھی، لوگوں کے لیے بالکل نئی تھی، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی جو ہے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، سب کے عقیدے بدلے ہوئے تھے، کوئی کسی عقیدے کو مان رہا تھا، ایک خدا کو تسلیم کرنا کوئی گوارا نہیں کر رہا تھا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعوت کو دیتے رہے اور پریشانیوں کو برداشت کرتے رہے، اپنے اس کارواں کو کبھی نہیں روکا، اور صحابہ کرام جو ہے تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، لوگوں کی تمام جو ہے الٹی سیدھی باتیں سنتے رہے اور طرح طرح کی تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین کے لیے جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، اس دین کے لیے، اس دین کے راستے میں جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام چیزوں سے روکا گیا، آپ کے راستے روک دیے گئے، آپ کو چلنے پھرنے کے لیے روکا جاتا تھا، آپ کے راستے میں کوڑا ڈال دیا جاتا تھا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، آپ کے اوپر اوجڑی ڈال دی جاتی تھی، آپ کے اوپر غلاظت ڈالی جاتی تھی، آپ کو تلاوت کرنے سے منع کیا جاتا تھا، آپ نے جو ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے برداشت کیا، آپ نے جب جو ہے باہر نکلنے کے لیے کوشش کی، اپنے وطن کو بھی چھوڑا، تب بھی لوگوں نے پریشان کیا ہے، آپ کو ہر طرح سے پریشان کیا، لیکن جو ہے تمام کے تمام صحابہ کرام جو ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام تکلیفوں کے باوجود اپنے مشن کو لے کر کے چلتے رہے، اور ایک وہ وقت آیا کہ مکہ فتح ہو گیا، اور تمام کے تمام وہ لوگ جو اجنبی لگ رہے تھے، جو دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جن کے عقائد بالکل الگ تھے، جو ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ تمام کے تمام لوگ اللہ کے نبی کے دین کو ماننے والے بن گئے، ایک اللہ کو ماننے والے بن گئے، وہ تمام فاسد عقیدے والے، وہ تمام برے عقیدے والے اچھے عقیدے والے بن گئے، وہ تمام کے تمام جو ہے غلیظ اور بد عقیدی کے جو ہے دریا میں ڈوبے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے ان کو اس دریا سے نکالا، ان کے عقیدے کو درست کیا، ان کی اصلاح کی، ان کو دنیا کے اندر چلنے کا طریقہ بتایا، دنیا کے اندر ان کو کس طرح رہنا ہے طریقہ بتایا، ان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتایا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، جب اس جماعت نے اس بات کو مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی کامیابی دی، ایسی کامیابی دی، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم بھی سنتے ہیں، اور تمام کے تمام لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ جماعت جو صحابہ کرام کی جماعت تھی، جس نے اللہ کے نبی کو مان لیا، اللہ کے نبی کے قانون کو مان لیا، اللہ کے نبی پر اپنا جان و مال قربان کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جماعت اس سے پہلے بھی دنیا کے اندر نہیں بھیجی تھی، اور کل قیامت کے دن تک ایسی جماعت نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اوپر کتنی محنت کی ہے اور کتنا بتایا ہے، کتنا سکھایا ہے، مگر وہ قوم اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات مان لی کیسے کامیاب ہوئے، ایسے کامیاب ہو گئے کہ ان کے جنتی ہونے کا دنیا کے اندر سرٹیفکیٹ مل گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنتی ہونے کا دنیا کے اندر جو ہے سرٹیفکیٹ ان کو بشارت مل گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی بڑی جماعت صحابہ کی ہے، ہر ایک صحابی جنتی ہے، ہر ایک صحابی جنتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو چاہا اسی کو جو ہے صحابیت کا شرف جو ہے دیا ہے۔ ہر ایک آدمی تو صحابی نہیں ہو سکتا، اللہ نے جس سے چاہا اسے صحابی بنا دیا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھا تھا، دنیا کے اندر کس طرح رہنا ہے،
किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, एक एक बात पर वो अमल करते थे और मानते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फख़्ज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा रसूल जो तुम्हें दे उसको तुम ले लो और जिस चीज़ से मना कर दे उसके करीब भी मत जाओ। हमने अभी कुरान की जो आयत तिलावत फरमाई थी उसका सादा सा तर्जुमा यही है कि जो है हमारे और आप सबके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो नमूना है। हमारे लिए अल्लाह के नबी की ज़िंदगी नमूना है। अब हमको किसी दूसरे की जो है ज़िंदगी नमूना नहीं बनाना है, हमको किसी से जो है किसी के तर्ज को देख करके जो है ज़िंदगी नहीं गुजारना है, बल्कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी देखना है और सहाबा किराम के जो है तमाम जो है अहवाल को देखना है कि उन लोगों ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी जो कामयाब हो गए। आज भी मेरे भाई, आज भी हम सबको जो है ये सोचना पड़ेगा कि जो है हम सब जो है अपने इस इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने ईमान की बका के लिए हम सबको फिक्रमंद होना है। हमारी जो लापरवाही और सुस्ती वाली ज़िंदगी गुजर रही है ये हमारे लिए नुकसान और खुसरान का बाइस बनेगी। आदमी अपने एतबार से ज़िंदगी गुजारने लगा, आदमी किसी से जो है पढ़े लिखे से कोई बात मालूम करना नहीं चाहता है, हर आदमी अपने एतबार से ज़िंदगी गुजार रहा है और ये हमारे लिए नुकसान है। तरह तरह की जो है चीज़ें, तरह तरह के अमल, तरह तरह की रसूमात, तरह तरह की बिदअत जो आदमी उसको दीन समझ करके कर रहा, दीन समझ के कर रहा और पूछने की ज़हमत नहीं करता। जिस अमल को हम कर रहे हैं उस अमल के बारे में जो है क्या हकीकत है उस अमल की। हर एक ईमान वाले की ये जिम्मेदारी बनती है वो किसी भी अमल को करने से पहले ये सोचे कि आया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म क्या है और नबी का तरीका क्या है, उसके बाद उस अमल को करें। इसलिए मेरे अजीज साथियों, हम सबको जो है अमल करना है तो तहकीक करनी है और अमल को जो है समझना है कि ये अमल सही है कि नहीं है, क्योंकि आज हमारे माशरे के अंदर तरह तरह की रसूमात और तरह तरह की बिदअत पनप रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो है अहादीस के अंदर फरमाया है कि अगर कोई आदमी किसी बिदअती की ताज़ीम करे, किसी बिदअती की ताज़ीम की है अगर किसी ने, तो उसने जो है इस्लाम को ढाने में मदद की है, इस्लाम को ढाने में मदद की है। और हम और आप जो है कितनी आसानी के साथ जो है इन तमाम बातों पे ज़रा सा भी ध्यान नहीं देते। कोई कुछ भी कर रहा है, कोई किसी तरह का भी अमल कर रहा है, बस ठीक है करने दीजिए, हमें ज़रा सा भी एहसास नहीं होता कितनी सख्ती है और कितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है किस तरह हमें ज़िंदगी गुजारना है और अमाल करने हैं। इसके लिए हम सबको फिक्रमंद होना पड़ेगा। अगर हमने फिक्र न ली तो हमारी ज़िंदगी जो चंद दिन की है वो यूँ गुजर गई, तो फिर आखिरत में जो है जो लामहदूद ज़िंदगी आने वाली है फिर उसमें क्या होगा। सहाबा किराम ने एक एक नुक्ते को समझा था, एक एक बात पर अमल किया था, तो फिर वो कामयाब हो गए थे। यहाँ तक कि कुरान की अगर कोई आयत नाजिल हुई है तो सहाबा ने जो है फौरन उस पर अमल किया है, फौरन उस पर अमल करके दिखाया और पेश किया है। एक आयत नाजिल हुई लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा अल्लाह के नबी, इसमें कहा जा रहा है कि तुम नेकी नहीं हासिल कर सकते उस वक्त तक जब तक तुम अपनी महबूब चीज़ को कुर्बान न कर दो। अल्लाह के नबी, मेरा ये बाग जो है वो बहुत बड़ा बाग था, बहुत बड़ा बाग था और उसमें कुआं भी था। अल्लाह के नबी भी उस बाग को जाया करते थे, आराम फरमाया करते थे, उस कुएं से पानी पिया करते थे। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वो बाग बहुत ही महबूब था। अल्लाह के नबी से फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा ये पूरा का पूरा बाग जो है सबका है, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान है। एक आयत को सुन करके जो है सहाबा किराम ने पर अमल किया है, फौरन अमल किया करते थे। आज हमारे सामने कुछ भी सुनाया जाए, कुछ भी बताया जाए, कुछ भी दिखाया जाए, लेकिन हमारे जो है कानों के ऊपर जरा सा भी असर नहीं पड़ता है, हम लोग एहसास नहीं देते हैं। बस जिस तरह आदमी जिंदगी गुजार रहा है वैसे ही गुजार रहा है। मेरे अजीज साथियों, एक वो लोग थे कि जिन्होंने जो है अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया अल्लाह के दीन के लिए, सब कुछ कुर्बान कर दिया है। अल्लाह ने उन्हें दुनिया के अंदर भी चमकाया है और आखिरत के अंदर भी वो सुरखरू हो गए। हम और आप भी जो है
अपने वक्त की कुर्बानी दें, दीन सीखें, अपनी जिंदगी के अंदर नबी का तरीका लाएं, इससे हमें कामयाबी मिलेगी। नमाज की पाबंदी करें, तमाम के तमाम मस्जिदों के अंदर नमाज की पाबंदी करें, औरतें अपने घरों के अंदर पाबंदी करें, एक दीनी माहौल बनाएं। दीनी माहौल जब घर के अंदर आएगा तो बेदीनी घर से निकलेगी। लेकिन आज हमारा माशरा इतना बिगड़ चुका है कि बेदीनी हमारे घरों के अंदर पनप रही है। हमारे जो है बच्चे वो बेदीन होते चले जा रहे हैं, उनको दीन का शऊर बाकी नहीं रह गया। हम और रात के अंदर जो है इस्लाम की अजमत और मोहब्बत नहीं रह गई, हमारे अंदर जो है वो दीनी तालीम का जज्बा बाकी नहीं रहा। आज कहाँ से कहाँ ये उम्मत पहुँच गई है। मेरे अजीज साथियों, आज अगर हमने फिक्र न ली तो आने वाले दिन में हम बहुत दूर हो जाएंगे, बहुत दूर हो जाएंगे। हम लोग भी तो नमाज पढ़ते हैं और एक नमाज सहाबा पढ़ा करते थे, हम लोग भी दुआ करते हैं और सहाबा किराम भी दुआ करते थे, हम भी आमाल करते हैं, सहाबा किराम भी आमाल करते थे। उनके आमाल के अंदर और हमारे आमाल के अंदर कितना तफावत हो गया है, हमारी नमाजों के अंदर उनकी नमाजों की कितना बड़ा फर्क हो गया है। हमें सहाबा जैसी नमाज सीखना है और सहाबा जैसी नमाज सीखने के लिए हमें अपने जान माल वक्त को कुर्बान करना है। सहाबा नमाज पढ़कर अपने हाथों को उठाते थे तो फौरन उनकी दुआ कबूल होती थी। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, आपने भी सुना होगा, बहुत से लोगों ने सुना होगा कि सहाबा किराम इस तरह दुआएं कबूल हो जाती थी उनकी। आज हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। ऐसे ऐसे सहाबी की नमाज के लिए जब खड़े हो जाया करते थे तो परिंदे ये समझते थे कि ये लकड़ी का ठूठ खड़ा हुआ है। परिंदे और चिड़िया उसके ऊपर आकर के बैठ जाया करती थी और घंटों बैठी रहती थी, उन्हें एहसास नहीं होता था क्योंकि उनका कयाम बेहरकत हुआ करता था, उनका सजदा बेहरकत हुआ करता था और बहुत तवील कयाम और बहुत तवील जो है सजदा हुआ करता था। मेरे अजीज साथियों, सहाबा किराम का एक काफिला जा रहा है और उसमें से एक सहाबी का खच्चर जिसका इंतकाल हो गया, रास्ते के अंदर वो मर गया है। सहाबी रसूल उस वक्त किसी सहाबी की मदद नहीं ले रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर पूरा यकीन और पूरा भरोसा है और काफिले वाले रुके हुए हैं, काफिले वालों को जाने का हुक्म दे दिया है। एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर काफिला निकल जाएगा तो हम इस काफिले से कैसे मिलेंगे। अल्लाह की जात पर इतना यकीन और भरोसा था, अल्लाह की जात को इतना यकीन था कि ये खच्चर जिसका इंतकाल हुआ है इसे जिंदा होना पड़ेगा और इसी खच्चर के ऊपर सवार होकर के हम अपने काफिले से मिलेंगे। काफिले से कहा कि तुम लोग अपना रास्ता लो, तुम लोग चले जाओ, अनकरीब हम तुमसे आकर के मिल लेंगे। सहाबी ने जो है नमाज पढ़ी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की है, ऐ अल्लाह इस खच्चर को तू कल कयामत के दिन जिंदा करेगा, मगर उस वक्त ये मेरे काम नहीं आएगा। आज अगर तू इसे जिंदा कर दे तो ये मेरे काम आ सकता है, मैं अपने काफिले से जाकर के मिल सकता हूँ। सहाबी रसूल ने ये दुआ की है, वो खच्चर तुरंत जिंदा हो जाता है और उसी खच्चर के ऊपर बैठ करके और फौरन अपने काफिले से जाकर के मिल जाते हैं। अंदाजा लगाओ उन सहाबी रसूल का यकीन कैसा था, उनका ईमान कैसा था। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा था, उनके यकीन में जरा सा भी जो है कमी नहीं थी कि ये सोचते पता नहीं ये खच्चर जिंदा हो या ना हो, हम काफिले से मिल पाए ना मिल पाए। जरा सा भी एक बार कह देते, एक दो सहाबियों को रोक दो, हम दुआ करके देख रहे हैं, अगर ये खच्चर जिंदा हुआ तो ठीक है, अगर जिंदा ना हुआ तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। क्या इस तरह की दुल्मुल यकीनी उनके अंदर थी? नहीं थी। उनको अल्लाह के जात के ऊपर पूरा यकीन और भरोसा था। कोई भी अमल करते थे तो ये जानते थे ये हो करके रहेगा, ये हो करके रहेगा। आज मेरे अजीज साथियों, हमारी नमाजों का क्या हाल है, हमारे आमाल, हमारा यकीन कैसा है? बिल्कुल दूर हो चुके हैं हम। नमाजियों की इतनी कमी कि मस्जिदें वीरान हैं। घरों का ये हाल है कि घरों के अंदर बेदीनी आम है, हमारे अंदर बेदीनी आम हो चुकी है। तरह तरह के वाक़यात हैं। आज आदमी दुआ करता है, हम भी दुआ कर रहे हैं, आप भी दुआ कर रहे हैं, सारे के सारे लोग मिल करके दुआ कर रहे हैं, मगर कोई एक अमल भी पूरा नहीं हो रहा है। अभी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हम अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मर्जी से तो सब कुछ करेंगे ही। सहाबा किराम के कहने पर अमल हो रहा है और आज हमारे कहने पर कुछ भी नहीं हो रहा। मेरे अजीज साथियों, इतनी मेहनत की जरूरत है और इतना ईमान और यकीन बनाने की जरूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हमारी मर्जी को पहचाने, ऐसी अपनी खुदी और मर्जी को बढ़ाना है। शायर कहता है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी
हमारी रजा क्या है? अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया है। सहाबा के वाकयात पढ़ करके देखो, एक सहाबी है जिनको जो है बंद कर दिया गया है, उनको एक कमरे के अंदर कैद कर दिया गया है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, खाने पीने की कोई चीज उन्हें मुहैया नहीं कराई जा रही है। वो सहाबी रसूल उस कमरे के अंदर बंद है, उन्हें गुस्ल की हाजत हो गई है, नहाने के लिए पानी नहीं है और ना पानी कोई उनको दे रहा है, कहां से पानी मिले? अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे गुस्ल की हाजत है, मैं अपनी पाकी हासिल करना चाहता हूं, मगर कोई रास्ता नजर नहीं आता है कि जहां से मुझे पानी दस्तयाब हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हाथ उठा करके दुआ करते हैं, देखते हैं कि उस घर के ऊपर एक जो है अब्र आता है, एक टुकड़ा आता है अब्र का, और उस घर के अंदर आने के बाद वो अब्र अपने अपने अंदाज से और अपने तरीके से और अल्लाह की कुदरत से उस कमरे के अंदर वो अब्र का टुकड़ा चला जाता है और उन सहाबी रसूल के ऊपर सिर्फ वो टुकड़ा पानी बरसाता है, वो सहाबी रसूल पाकी हासिल कर लेते हैं। अल्लाह के बंदो, अंदाजा लगाओ किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने उस बंदे की मदद की है कि नहाने के लिए कमरे के अंदर पानी को बरसाया है। सहाबा किराम के खेतों के अंदर पानी बरसता था और दूसरे के खेत में पानी नहीं बरसता था। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा की एक एक बात के ऊपर अमल करके दिखाया है। जो सहाबी चाहते थे अल्लाह उसी को उसी वक्त फौरन कर दिया करते थे। मेरे अजीज साथियों, ऐसा यकीन बनाया था, ऐसी मेहनत करी थी, ऐसा फिक्र और दर्द लिया था पूरी उम्मत का। आज मेरे अजीज साथियों फिर वही होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था, जो मैंने शुरू में हदीस पढ़ी थी कि जिस वक्त दीन की इब्तिदा हुई थी उस वक्त बेगानगी और मुसाफिरानेपन में हुई थी, उस वक्त बेकसी का आलम था। तमाम के तमाम लोग तमाम खुदाओं को मानने वाले थे, माबूदाने बातिला को मान रहे थे, एक खुदा पर किसका यकीन नहीं था, अकाइद बिल्कुल बिगड़े हुए थे, बड़ी परेशानी का आलम था। उस वक्त अल्लाह के नबी ने जो है इलाए कलिमतुल्लाह का ऐलान किया था। उस वक्त फरमाया था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे। मेरे अजीज साथियों, बीच में तो बहुत सी चीजें ऐसी आई हैं और बहुत से हालात आए हैं कि सहाबा किराम के अंदर बालदौलत भी आया है, सहाबा किराम ने फतूहात भी हासिल की है और तमाम के तमाम बड़े बड़े शहरों को फतह किया है, बड़े बड़े मुल्कों को फतह किया है और उनके जो है मैदानों के अंदर बड़े बड़े माले गनीमत के अंबार लगे होते थे और तमाम का तमाम माल उनके पास जमा हो गया था। लेकिन आज मैं ये फिर कहना चाहता हूँ, आज हमारा वो दिन जो बेगानगी के आलम में आया था, आज फिर से बेगाना हो चुका है, आज फिर से अजनबी हो चुका है। आज तमाम के लोगों ने जो है दीन को अजनबी बना दिया है, दीन को बिल्कुल जो है बेगाना बना दिया। क्यों? इसलिए कि उलमा की जरूरत नहीं समझी, फुक़हा की जरूरत नहीं समझी, मुहद्दिसीन की जरूरत नहीं समझते, अपने एतबार से जिंदगी गुजारना अपना फर्ज समझते हैं और अपने एतबार से अमाल करते हैं। वो तमाम के तमाम शरीयत के कानून जो अल्लाह के नबी ने बताए थे, उन कानूनों को पसे पुस्त डाल करके वो तमाम बादशाहों के कानून और तमाम बादशाहों की बनाई हुई रस्में उनको दीन समझ करके किया जाता है। ना जाने कैसी कैसी रसूमात हमारे अंदर पनप रही है और हम उस सबको दीन समझ करके कर रहे हैं, हम दीन समझ करके कर रहे हैं। तो जहां पर जो है सुन्नत होना चाहिए था वहां बिदअत बैठी हुई है। जिन घरों के अंदर जो है दीनी माहौल होना चाहिए था, आज उन घरों के अंदर जो है गैर शरई जो है रस्में बैठी हुई है। इसलिए मेरे अजीज साथियों, अपने आप को आखिरत के एतबार से तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए मेहनत की जरूरत है, उसके लिए अपने ईमान को बनाना पड़ेगा, यकीन को बनाना पड़ेगा और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपना जान माल वक्त लगाना पड़ेगा। जिस तरीके से एक आदमी अपने घर के अखराजात को पूरा करने के लिए, अपने घर के तमाम जो है बीवी बच्चों के अखराजात को पूरा करने के लिए तमाम तरह की तगोदो करता है, कोशिश करता है, दिन और रात मेहनत करता है, क्योंकि वो मालिक है, वो जिम्मेदार है, वो घर का सरपरस्त है, इसलिए वो अपने तमाम फरीज़े को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। इससे कहीं ज्यादा फरीज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे औलाद के कंधों के ऊपर डाला है कि दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर जितनी भी इंसानियत है, इस वक्त जो है तकरीबन 7 अरब से भी ज्यादा इस दुनिया के अंदर लोग हैं और जो है उसमें से करीब जो है 3 से 5% लोग ऐसे हैं जो लोग जो है दीन की जो है तबलीग करके और जो है दीन की बातों को लोगों को बताते फिर रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, जो 5% ऐसे लोग हैं, 5% जो बिल्कुल एकदम दूर और बाहर हैं, उनको जो है इस्लाम के अंदर लाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो अगर बेदीनी की हालत में चले गए तो कल कयामत के दिन क्या हमसे सवाल नहीं किया जाएगा
क्या हमसे पूछा नहीं जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन किसी एक खित्ते के लिए नहीं आया है, किसी एक मुल्क के लिए नहीं है, किसी एक शहर के लिए नहीं है, बल्कि पूरी कायनात के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को नबी बना करके भेजा था। पूरी कायनात के लिए कुरान को भेजा था। सबके ऊपर वही कानून लागू होगा। तमाम के तमाम लोगों को जो है इस्लाम की दावत दी जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरा लाया हुआ कलिमा हर कच्चे पक्के घर के अंदर पहुंच करके रहेगा। अंदाजा लगाओ, क्या वो बात मुकम्मल हो चुकी है? क्या हर एक घर के अंदर वो कलिमा पहुंच चुका है? क्या हर एक आदमी के पास वो दीन की दावत पहुंच चुकी है? अगर पहुंच चुकी है तो फिर ठीक है, कोई जरूरत नहीं, बैठ जाओ और कयामत का इंतजार करो। और अगर वो बात नहीं पहुंची है तो मुजरिम है हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस बात को लेकर के पूरे आलम के अंदर चलना और चलना पड़ेगा। और जो है एलाए कलिमतुल्लाह की इशाअत के लिए हमें अपने जान माल वक्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस तरीके से मेरे अजीज साथियों साहबे-किराम ने किया था। आज जो है अगर कोई दीन की बात लेकर के उठता है तो उसको जो है बिल्कुल अजनबी समझा जाता है। आज अगर इस्लाम का कानून किसी को बताया जाता है तो वो जो है क्या समझता है, उससे नागवार गुजरता है। ईमान वाले मुसलमान, उनके सामने अगर दीन बताया जाए, उनके सामने अल्लाह के नबी का अगर तरीका बताया जाए तो उन्हें नागवार गुजरता है। ईमान वालों को नागवार, रिसालत का नारा लगाने वालों को पैगाम रिसालत से बगावत। अंदाजा लगाओ कि हम कहाँ हैं, कैसी कैसी रस्में, कैसे कैसे अमाल के अंदर से मुब्तला हो गए और जिंदगी यूं ही गुजरती चली जा रही है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर जो है क्या फरमाया था? अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, क्या दिन मुकम्मल हो गया? आज दिन मुकम्मल हो गया है। अब दिन के अंदर कमी बेशी नहीं हो सकती, दिन के अंदर कमी बेशी नहीं हो सकती है। नबी के सिवा अगर किसी ने कोई बात कही और उसको दीन के अंदर अगर किसी ने शामिल कर लिया तो वो दीन बनेगा? वो तो बिदात है, वो तो इजाद है, वो तो नई चीज है। अल्लाह के नबी ने तो दीन को हज्जतुल विदा के मौके पर मुकम्मल कर दिया था। और क्या फरमाया था? फरमाया था उस वक्त तकरीबन 1.25 लाख सहाबा-ए-किराम मौजूद थे। फरमाया था कि हमने तुम तक जो है पूरा दिन नहीं पहुंचा दिया। सहाबा-ए-किराम ने कहा, अल्लाह के नबी आपने तो करके दिखा दिया है, फिर अब क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी नबी है। अल्लाह के नबी आखिरी नबी, शरीयत आखिरी शरीयत, कुरान आखिरी किताब आसमानी है। कोई किताब अब नहीं आएगी, कोई नया दीन नहीं आएगा, कोई नई शरीयत नहीं आएगी, कोई नबी नहीं आएगा। तो सहाबा-ए-किराम को क्या काम दिया गया? सहाबा-ए-किराम को यह काम दिया गया, ऐ मेरे साथियों, जिस काम को हम किया करते थे आज से वो तुम्हारे कंधों के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाती है। जो लोग यहाँ पर हाजिर नहीं है, पूरी दुनिया की तरफ इशारा है, पूरी कायनात की तरफ इशारा है, जो लोग हाजिर नहीं है उन तक इस दीन को पहुँचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। उन तक मेरे इस कलमे को पहुँचाने की जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा की बनती है। अंदाजा लगाओ, वो जिम्मेदारी हम भूल गए। वो लोग जो दीन के काम की, दीन के जो है तबलीग की मुखालफत पर इसरार करते हैं, उनको ये बात याद नहीं आती कि अल्लाह के नबी ने कहा था कि जो है ये जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है कि तुम हाजिर जितने भी हैं वो गायबीन तक पहुंचा दें। अंदाजा लगाओ, उस वक्त 1.25 लाख सहाबा-ए-किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद हैं। आज कोई जाकर के देखे 10-12 हज़ार से ज्यादा कब्रें नहीं मिलती हैं मदीने के अंदर। और जो है सारे के सारे सहाबा-ए-किराम कहाँ चले गए? सारे के सारे सहाबा-ए-किराम कहाँ चले गए? पूरी दुनिया के अंदर चले गए। जो जिधर था उधर ही चला गया, कोई कहीं पहुंचा और इंतकाल हो गया, किसी ने कितनी मेहनत की और इंतकाल हो गया। न जाने कहां से कहां लोगों ने कब्रें बना ली इसी दीन के लिए, इसी कलमे के लिए, जिसको आज हम और आप जरा सी भी अहमियत नहीं देते, जिस दीन को हम जरा सी भी अहमियत नहीं देते, जिस कानून को हम मानने के लिए तैयार नहीं, जिस शरीयत पर अमल करने के लिए हमारे घर का कोई फर्द तैयार नहीं होता। अगर नमाज पढ़ता भी है तो बिल्कुल खोखली नमाज है, उस नमाज को सीखने की हम कोशिश नहीं करते। उसी नमाज को लेकर, उसी दीन को लेकर, उसी पैगाम को लेकर सहाबा-ए-किराम ने जो है पूरी दुनिया का जो है सफर किया है और जहां तक जो पहुंचा एलाए कलिमतुल्लाह के लिए पूरी मेहनत की है, पूरी जद्दोजहद की है, अपने बीवी बच्चों को कुर्बान किया, अपनी जो है अपने घर को कुर्बान किया, अपनी मालो जायदाद को कुर्बान किया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया मेरे अजीज साथियों, इसी दीन के लिए जिस दीन को आज हम बिल्कुल अजनबी समझते हैं, जिस दीन को आज हम बिल्कुल अजनबी समझते हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बस आदमी अमल करने वाला अमल कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया
اس طریقے پر عمل کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اس طریقے کو صحیح طریقے سے سمجھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اگر کوئی آدمی کہتے نہیں یہ چیز غلط ہے تو کیا ہمارے اندر اتنا ہم بے حس ہو گئے کہ وہ چیز صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کے لیے ہم ذرا سی فکر بھی نہیں لے پاتے, ذرا سی فکر نہیں لے پاتے. کتنی جو ہے کتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں. ہم آپ کو ذرا سا اشارہ کریں آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ خطرہ تھا اس بات کا, کتنا خطرہ تھا کہ لوگ قبروں کو, مزاروں کو عیدگاہ اور سجدہ بنائے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی آخری عمر کے اندر, یعنی اس کے بعد اللہ کے نبی بیماری کی حالت میں ٹھیک نہیں ہوئے, بہت زیادہ دن نہیں گزرے تھے, آج اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, جو بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, کہ لعنت ہو یہودیوں نصارہ کے اوپر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عیدگاہ اور سجدہ بنا لیا تھا. کیوں کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو؟ کیا یہ کوئی سوچ نہیں سکتا؟ کیا یہ بات بتائی نہیں جاتی ہے؟ کیا یہ بات حدیث نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہے؟ کیا یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود نہیں ہے؟ کیوں نہیں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اتنا خطرہ لاحق تھا کہ میرے بعد لوگ ایسا کریں گے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی